करेंगे। फंक्शन को आप क्लास 11 में भी पढ़ चुके हो कि कोई भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम सेट ए और सेट बी का लेते हैं, जो दोनों नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो उन कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में अगर हमें ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्डर पेयर मिलता है जिसमें फर्स्ट एलिमेंट्स रिपीट ना हो, तो ऐसे केसेस में हम उनको फंक्शन कह सकते हैं। उसी डेफिनेशन को मैंने यहाँ पे एक बार फिर से लिख के रखा है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स and F is a relation from set A to set B such that for each A element of set A there exists B element of set B and the order pair A comma B belongs in F. Just like this, A comma B is first order pair I am taking and A comma C second order pair I am taking, and if this situation is there means this implies B is equal to C. It means what? There should not be repetition of the same element. Okay, it means same element is not related with two different elements of another set. So this is the meaning of this. If A is related to B and A is related to C, it means there should be B is equal to C. Only then we can say this one is a function, otherwise it is a relation. One more definition is there. When A and B are two non-empty sets and F is a rule or method by which A and B are related, set A and set B are related, which associates elements of set A with set B such that all elements of set A are associated with elements of set B. Okay, and each element of set A is associated with a unique element of set B. Okay, means अगर जो हम इस एग्जांपल को देखते हैं कि सेट A हमारा A है जिसके एलिमेंट्स A, A, B, C, D मैंने ले रखा है, और एक दूसरा सेट B है जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 है, जिसमें सेट A के एलिमेंट्स सेट B के कुछ एलिमेंट्स के साथ रिलेटेड है, तो ये दोनों ही सेट में F एक रिलेशन है सेट A और B के बीच में। तो सेट A रिलेटेड है सेट B के 1 से, एलिमेंट A is related with element 1 of set B, element B is related with element 1 of set B, element C is related with element 2 of set B, and element D is related with element 3 of set B. While in set B there are 5 elements, 1, 2, 3, 4, 5. Then we can see here there is no element in set A which is left without image, without relation with any element of set B. This is first thing. And one more thing, any element of set A is not related with two different elements of set B. It means it is unique. They have unique image. But two different elements of set A is related with the same element of set B. If this situation is there, then we can say F is a function. Okay? And one more thing, in class 11 already we have done, all functions are relation, but all relations are not functions due to this situation. If somewhere we are getting that element of set A is related with two different elements of set B, then in that case we can't say F is a function. In that situation we can say F is a relation only. Okay? आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि किसी क्लास के दो अलग अलग बच्चे सेम मार्क्स ला सकते हैं, सेम रैंक ला सकते हैं, ये पॉसिबल है। लेकिन किसी क्लास का एक पर्टिकुलर स्टूडेंट
दो अलग अलग रैंक्स नहीं ला सकता। इसलिए उस सिचुएशन में आप कहोगे ये एक रिलेशन है, और उस सिचुएशन में जब वो केवल एक रिजल्ट लाता है और दो अलग अलग स्टूडेंट्स सेम रिजल्ट लाते हैं तो वो फंक्शन है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। एक और चीज, सेट ए को हम सेट ऑफ डोमेन कह सकते हैं, सेट बी को हम कोडोमेन कह सकते हैं, और वो एलिमेंट्स जो सेट ए के किसी एलिमेंट से रिलेटेड है उनका कलेक्शन रेंज सेट होगा। जैसे 1 2 3, इट इज कॉल्ड रेंज सेट। ओके, वन मोर थिंग, ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ग्राफ ऑफ फंक्शन, किसी भी फंक्शन का ग्राफ, अगर जो हम कोई फंक्शन ले लें y = fx, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन x में है और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हमें y मिल रहा है। तो x की डिफरेंट वैल्यूज हमारी x कोऑर्डिनेट्स को शो करते हैं जो हमें सेट A से मिलते हैं, और उसके रिस्पेक्ट में जो y हमें मिल रहा है वो एलिमेंट्स हैं जो सेट B के एलिमेंट्स होंगे, और इन दोनों का कलेक्शन एक ऑर्डर पेयर x, y बनेगा जो हमारा कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से हम उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और ग्राफ को प्लॉट करने के बाद इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हमें मिल सकते हैं। इन ग्राफ्स का एक यूज हम कर सकते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट से। मींस वर्टिकल लाइन टेस्ट की हेल्प से हम जान सकते हैं कि कोई भी ग्राफ हमारा है किसी भी कर्व का, तो वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। अगर जो फंक्शन है तो उस कर्व पे, जैसे मैंने यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ किया है, एक वर्टिकल लाइन इसको कट कर रही है, तो ये कट करना हमें चेक करना है। जब ये लाइन इसको एक सिंगल पॉइंट पे इस कर्व को कट करेगी तो हम बोलेंगे कि वो जिस भी फंक्शन का कर्व है, सॉरी जिस इक्वेशन का वो कर्व है या जो वो कर्व का इक्वेशन है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से यहाँ पे सेकंड फिगर में हम देख सकते हैं, ये कोई दूसरा कर्व है जिसमें हमने एक वर्टिकल लाइन को ड्रॉ किया, ये लाइन इस कर्व को एक सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ भी कह सकते हैं ये कर्व एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड फिगर में हम देख सकते हैं ये एक पैराबोलिक शेप है जिसमें हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, तो ये दो अलग अलग पॉइंट्स के सेम कर्व को कट कर रहा है। ऐसी सिचुएशन जब भी आपको मिलेगी तो आप कह सकते हो कि ये कर्व एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, और इसमें आप लिख सकते हो दिस इज नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। लास्ट फोर्थ फिगर में भी हम देख सकते हैं ये एक इलिप्स का शेप है, और इसमें मैंने ये वर्टिकली एक लाइन ड्रॉ किया है, तो ये लाइन इस कर्व को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो ये एक फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता, पर आप लिख सकते हो दिस इज नॉट अ फंक्शन। और ये वर्टिकल लाइन टेस्ट की हेल्प से आप ये जान सकते हो कि कोई कर्व किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 हुआ लेक्चर 4 का। अभी जस्ट इसके बाद मैं इसका पार्ट 2 आपको पार्ट 2 में अदर प्रॉपर्टीज और टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो दिस इज देयर, यू ट्राई टू लर्न एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड।